Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we are going to study figures of speech because I have decided that we should start studying from our textbook. We will do the first poem. So before we do the first poem, let us first study the figures of speech. I will start with the simile, then I will teach you metaphor, and then we will study those figures of speech which are generally not taught by teachers or which are taught by teachers but students generally misunderstand them or either not understand them. So we will do with those topics first. But as a custom, as a tradition, let us start with simile, which is the most basic of all the figures of speech. So what is figure of speech? Nobody is going to ask you what is a figure of speech. But remember, a figure of speech is a departure from normal way of saying things. We say things in a different way which creates an effect on the reader or listener. That is a figure of speech. A figure of speech is a departure from the ordinary way of saying things so as to create an effect on the reader or listener. है ना? फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जो सीधी सादी बात को सीधे सादे तरीके से बोलने के बजाय कोई ऐसे तरीके से बताते हैं जिसके कारण पढ़ने वाले या सुनने वाले पर ज्यादा असर पड़ना चाहिए, ज्यादा इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए। ऐसे तरीके से किसी बात को बोलने को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक फिगर ऑफ थॉट भी होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वी हैव टू स्टडी फिगर्स ऑफ स्पीच। सो आई एम नॉट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। वी विल स्टडी, और मैं इसका एक पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। उसमें 2 मिनट्स में पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे जल्दी से समझ लेना, पढ़ लेना, उसका भी आपके पास आइडिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सिमिली। लेट्स कम टू बिजनेस डायरेक्टली। नोबडी विल आस्क यू व्हाट अ फिगर ऑफ स्पीच इज, इसलिए मैं डेफिनेशन लिखवा के नहीं देता हूँ, मैंने समझा दिया। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सीधी सादी बात को इस तरीके से लपेट कर बोलना, इस तरीके से चेंज करके बोलना जिसका पढ़ने या सुनने वाले पर गहरा असर पड़ना चाहिए। वो बात उसके दिल पर असर करना चाहिए, उसके दिमाग पर असर करना चाहिए। इस तरीके से किसी बात को बोला जाए तो उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। So the first figure of speech is simile. The word simile comes from the Latin similarity. It comes from the similist, and similist means similarity. So in this figure of speech there is similarity. और इसके लिए reason क्या लिखते हैं हम? तो for simile the reason is a direct comparison. A direct comparison is made between, in this figure of speech, a direct comparison is made between two persons, places or things. Between two persons, places or things. So simile is a figure of speech in which a direct comparison is made between two persons, places or things. What is a direct comparison and why is it called direct? So anything which can be understood easily is called direct. जो चीज सीधी सादी डायरेक्ट समझ में आती है, जो चीज इजीली समझ में आती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन की गई है, ये समझ में आता है। In this figure of speech we can easily see that a comparison is made between one particular thing and another particular thing. For example, my grandmother is as beautiful as a rose. This is an example. E.g. is exempli gratia, means for example. So my grandmother is as beautiful as a rose. Can you see it clearly? Now it's okay. So my grandmother is as beautiful as a rose. What does that mean? Here a direct comparison is made between the beauty of grandmother and the beauty of a rose. My grandmother is as beautiful as a rose.
मेरी दादी जी इतनी सुंदर है जितना कि गुलाब सुंदर होता है। तो किसकी कंपैरिजन हो रही है? सुंदरता की कंपैरिजन हो रही है। किसके सुंदरता की कंपैरिजन हो रही है? Whose beauties are compared? The beauty of grandmother is compared to the beauty of a rose. Compared with नहीं बोलते, compared to बोलते हैं। compared with का मतलब होता है similarities and differences दोनों बताना। compared to का मतलब है similarity बताना। So यहाँ क्या लिखेंगे हम? रीजन लिखेंगे इट इज सिमिली बिकॉज अ डायरेक्ट कंपैरिजन हियर सी हाउ टू राइट दिस आंसर सिमिली दिस इज सिमिली और क्या लिखेंगे अ डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड अ डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन the beauties of a direct comparison is made between the beauties of the grandmother and a rose. In general, a half mark is given for the correct identification of the figure of speech and a half mark is given for its explanation. So a direct comparison is made between the grandmother and a rose. Actually दादी और गुलाब की कंपैरिजन हो रही है, सच में मीनिंग क्या है? उनकी सुंदरता की कंपैरिजन हो रही है और डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड। अच्छा रिमेंबर, डायरेक्ट कंपैरिजन समझने के लिए हमारे पास तीन वर्ड्स होते हैं जो जनरली सिमिली में आते हैं, एज, लाइक या सो। सो एज, सो एज, लाइक या सो एज से हम पहचान लेते कि इट इज सिमिलैरिटी। मतलब देखो यहाँ पर एज आ गया, एज या सो एज आ गया, इससे हम समझ जाते कि ये कंपैरिजन है। व्हेनेवर जब एज के बीच में आ जाए कुछ या सो एज के बीच में आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि दिस इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है। अनदर एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव दिस एग्जांपल, we can say this room is like a furnace, or he fought like a lion in the battle. He fought like a lion in the battle. He fought, उसने ऐसे लड़ा युद्ध में जैसे कि वो एक सिंह था, जैसे कि वो एक बाघ था, जनरली शेर बोलते थे लोग। So he fought like a lion in the battle. So where is the comparison? There is a comparison between the bravery of a lion and this person he. Okay, he is compared to a lion. So again we will write this is simile and we will put the colon marks, two vertical dots. इसका मतलब क्या होता है? टू वर्टिकल डॉट्स का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन भी हम पढ़ेंगे तो उसपे वर्टिकल डॉट्स का मतलब होता है बिकॉज। ये वैसे सेड का भी काम करता है, सेज या सेड, लेकिन यहाँ ये डॉट्स का मतलब है बिकॉज। सिमिली है बिकॉज, क्या रीजन है? डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड, डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन, डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन a lion and quotation marks में लिख देंगे हम he, single quotation marks में we can write he. A direct comparison is made between, उल्टा कर देते इसको, a direct comparison is made between he and a lion. This is the explanation for it. This is simile because a direct comparison is made between that person and a lion. The person was as brave as a lion. Okay, I hope that you understood it. I'll give you another example. You can take a screenshot and we can proceed. Write these examples in our grammar copy. I may ask, okay, not now. Let's proceed to study further examples. So let us see the third example of simile. This room is
क्या करते हैं, द ट्रैफिक इज मूविंग एज स्लोली, द ट्रैफिक इज मूविंग as slowly as a jam. The traffic is moving as slowly as a jam. ठीक है, if there is a container, अगर हमारे पास एक कंटेनर है उसमें जैम रखा है, जैम समझते ना, सॉस जैम, सो जैम, किसान जैम, ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं हम लोग, सो जैम, if the traffic is moving very slowly, the jam also moves very slowly, you know, अगर एक डिब्बा है उसमें जैम रखा है, हमने ढक्कन खोला उसका और बॉटल को ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया, so what happens, does the jam fall out suddenly? No, because we know the jam has high viscosity, जैम का गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण जैम थोड़ा थोड़ा धीरे 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 बाहर निकलता है, तो जैम धीरे धीरे आगे चलता है। वैसे ही अगर ट्रैफिक भी, गाड़ियां भी अगर धीरे 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 आगे चल रही है तो हम बोलते हैं अरे ये ट्रैफिक तो जैम की तरह धीरे धीरे चल रहा है, सो द ट्रैफिक इज बिहेविंग लाइक अ जैम, सो इट इज कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन, हियर द वर्ड्स एज the word as is repeated, so we can write the explanation here, simile, and what is the similarity, we'll write a direct comparison is made, a direct comparison is made between, a direct comparison is made between the traffic में कंपैरिजन हुई, डायरेक्ट कंपैरिजन, एंड अ जैम, ट्रैफिक में और जैम में कंपैरिजन हो रही है, बोथ आर मूविंग स्लो, बोथ मूव स्लोली, सो ट्रैफिक भी धीरे धीरे चल रहा है एंड जैम भी धीरे धीरे बाहर निकलता है, सो अ डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन ट्रैफिक एंड जैम। व्हाई इज इट कॉल्ड डायरेक्ट कंपैरिजन? क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। जब समझ में नहीं आता कि दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं करके, कभी कभी होता है कोई हमारी इज्जत से बेइज्जती कर देता, हमारे समझ में नहीं आता हमारी बेइज्जती हो गई, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्टली हमारी कोई बेइज्जती कर देता है, हमारे समझ में ही नहीं आता है, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो चीज समझ में ना आवे वो इनडायरेक्ट, एंड द थिंग व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इजीली इज कॉल्ड डायरेक्ट। सो वी हैव डन दीस थ्री एग्जांपल्स। अब ऐसा कहे तो सिमिली के हजारों एग्जांपल्स बनते हैं, बट हम इतने सारे कहाँ बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड लेट अस प्रोसीड टू स्टडी द सेकंड फिगर ऑफ स्पीच, एंड दैट इज मेटाफर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, वी कैन हैव अ लॉट मेनी एग्जांपल्स, बट दिस मच इज सफिशिएंट। लेट्स प्रोसीड टू स्टडी मेटाफर नाउ। So the second figure of speech that we are going to study here is metaphor. Metaphor. In the Greek language, meta means after. In science, you say metazoa, protozoa, metazoa. Zoo is animal. So meta means after, and phero means I carry. Phero means I carry. I carry after. I carry after means एक चीज को दूसरी चीज बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तो विल राइट an indirect comparison is made in metaphor. An indirect comparison, see here it is indirect. An indirect comparison is made between two things, two persons, places or things. Two dissimilar things, we can write two dissimilar things which have at least one similarity. Which have at least one similarity. I will explain. An indirect comparison is made between two dissimilar things which have at least one similarity. And सबसे बड़ी बात तो ये है, the two things being compared, the two things being compared
spoken of as if they are one and the same. ये सबसे बड़ी बात है कि the two things which are compared indirectly are said to be one and the same thing. दो चीजों की कंपैरिजन करते तो ये नहीं बोलते कि पहली चीज दूसरी जैसी है, बोलते पहली चीज ही दूसरी चीज है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी E.g. exempli gratia. My grandmother is a rose. See, this is metaphor. Metaphor क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है? Why is there an indirect comparison? Because it is not understood easily. जल्दी से ये समझ में नहीं आता है. My grandmother is a rose. मेरी दादी जी एक गुलाब है. दादी जी गुलाब है, समझना मुश्किल है. लोग बोलेंगे अरे इसकी दादी जी गुलाब है, क्या इसकी दादी जी झाड़ पे लगी, क्या इसकी दादी जी क्या बोलेंगे अब? So my grandmother is a rose. Here the writer, the poet wants to say that she is as beautiful as a rose. वो इतनी सुंदर है जितना गुलाब सुंदर होता है. तो अगर वो बोले कि my grandmother is like a rose, वो सिमिली हो जाएगा. अगर वो बोले she is as beautiful as a rose, तो वो सिमिली हो जाएगा. वो बोले अगर मेरी दादी जी गुलाब जैसी है सुंदर, तो वो सिमिली हो जाएगा. लेकिन अगर वो बोले कि मेरे दादी जी ही गुलाब है, दादी जी खुद गुलाब है, तो वो मेटाफर हो जाएगा. क्यों? दादी जी की कंपैरिजन किससे हो रही? गुलाब से हो रही, लेकिन दादी को ही गुलाब बोल दिया. तो व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन? मेटाफर. एंड द रीजन इज, है ना, यहां पर क्या करेंगे? द ग्रैंडमदर, अभी किसकी दादी है? माय ग्रैंडमदर. सो द ग्रैंडमदर इज इनडायरेक्टली compared टू अ रोज. दादी जी को रोज से कंपेयर किया हुआ है. द ग्रैंडमदर इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ रोज. दादी जी को गुलाब से कंपेयर किया गया है ना. और विदाउट यूजिंग वर्ड्स एज, लाइक एंड सो. इसमें एज या लाइक या सो वर्ड नहीं आता. मेटाफर में कभी भी एज या लाइक या सो वर्ड कंपैरिजन वाला नहीं आएगा. सो द ग्रैंडमदर इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ रोज. इसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी कभी समझना मुश्किल होता. अगर मैं कहीं जाऊं और मैं बोलूं किसी से माय ग्रैंडमदर इज अ रोज, मेरी दादी जी तो गुलाब है, तो जल्दी से नहीं समझ में आएगा. उसको समझने में टाइम लगेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. अंडरस्टूड? All right, see the next example. I hope you understood this example. My grandmother is a rose. दादी जी को खुद गुलाब ही बोल दिया. गुलाब जैसे नहीं, गुलाब ही चाहे बोलते दादी जी. तो अब देखो, let us see another example. So this another example is, for example, exempli gratia. हमने लायन वाला एग्जाम्पल पढ़े थे ना, तो ऐसा लिखेंगे. He was a lion in the battle. He was a lion in the battle. See again an indirect comparison. Indirect comparison क्यों हो रही है? ऐसा नहीं बोल रहे कि he fought like a lion. उसने सिंह की तरह, शेर की तरह लड़ाई की, ऐसा नहीं बोल रहे. He fought as bravely as a lion. ऐसा भी नहीं बोल रहे कि इतनी हिम्मत से लड़ाई लड़ा जितना शेर सिंह लड़ता है, वैसा भी नहीं बोला. He was a lion. वो खुद ही लायन था बोलते. अब क्या आदमी शेर होता है? क्या आदमी सिंह होता है? सिंह जैसा हो सकता है, लेकिन वो शेर थोड़ी हो जाता आदमी, है ना. तो अपना स्पीशीज थोड़ी बनेगा. होमोसेपियन है अपन, तो अपन ऐसा थोड़ी हो जाएगा. लियो पैंथेरा थोड़ी बन जाएगा. लायन तो लियो पैंथेरा उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, साइंटिफिक नेम. और हमारा है होमोसेपियंस. तो उस जैसा है बोलने के बदले वही है बोल देते मेटाफर में. फॉर एग्जाम्पल, सो इट्स एक्सप्लेनेशन विल बी मेटाफर. एंड अगेन वी विल राइट an indirect comparison. An indirect comparison is made. An indirect comparison is made between he and a lion. हम ऐसा भी बोल सकते यहाँ
कि he and the lion are said to be the one and the same thing. ये लिखना मत, just for knowledge. He and a lion are said to be one and the same thing. One and the same thing. ऐसा बोल रहे जैसे कि वो ही और लायन एक ही चीज का नाम है, हालांकि ही एक अलग ह्यूमन बीइंग है और लायन एक अलग एनिमल है, ठीक है। तो दैट इज मेटाफर। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, द थर्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, लाइफ इज अ जर्नी, सम से लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। सो लाइफ इज एन आइसक्रीम है, ये क्या हो गया? लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम नहीं बोल रहे। अगर बोलेंगे लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, जिंदगी आइसक्रीम की तरह है बोल देंगे तो सिमिली हो जाएगा। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम इज सिमिली। लेकिन बोले लाइफ खुद एक आइसक्रीम है तो ये मेटाफर हो जाएगा। तो दो चीजों को एक ही चीज बोल दिया जाए तो उसको मेटाफर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर, और दो चीजों को एक ही बोल देने से क्या होता, समझ में ही नहीं आता। अगर मैं किसी के घर जाऊंगा और बोलूंगा मेरे चाचा तो शेर है, लोग बोलेंगे इसके चाचा शेर है, मुझे समझाना पड़ेगा वो इतने हिम्मत वाले जितना शेर है, ऐसा बोलना पड़ेगा। वैसे मेरे चाचा कोई है ही नहीं। अब सुनो, द नेक्स्ट एग्जांपल इज द ट्रैफिक इज जैम। द ट्रैफिक इज jammed. The traffic is jammed. The traffic is jammed. The traffic is jammed. वैसे उसको जैम पढ़ना चाहिए अपने इधर ना, बहुत से हिंदी वाले लोग बोलते जाम, ट्रैफिक जाम हो गया बोलते, वो जाम नहीं है, जैम है। सो द ट्रैफिक इज जैम, ट्रैफिक जैम है। क्या ट्रैफिक जैम है? ट्रैफिक तो अलग चीज होती है और जैम तो अलग चीज है। क्या ट्रैफिक को ब्रेड पे लगा के खाएंगे हम? ट्रैफिक और जैम एक ही चीज है क्या? नो। सो हियर अगेन कंपैरिजन हो रही है। फिर क्या लिखेंगे? फिर से वही रीजन लिखेंगे आप। नाउ लिख दो क्या? ठीक है, metaphor, and the reason is the traffic is indirectly compared to a jam. The traffic is indirectly compared to a jam. Compared with a jam नहीं लिखना, कंपेयर टू और जैम लिखना। कंपेयर टू का मतलब होता है सिमिलैरिटीज ढूंढना, कंपेयर विद का मतलब होता है डिफरेंसेस ढूंढना, और सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों ढूंढना। सो यहाँ हम सिमिलैरिटी बताने के पीछे पड़े ना, इनडायरेक्ट सिमिलैरिटी। सो मेटाफर, द ट्रैफिक इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ जैम। कंपेयर किससे किया है? ट्रैफिक को जैम से कंपेयर किया है। दिस इज। और एक होता है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। द हेड of the department. This is a dead metaphor. Dead metaphor का मतलब कभी कभी कंपैरिजन करते भी लेकिन उसमें कोई ध्यान ही नहीं देता। She is the head of the department. हम क्या बोल रहे हैं? She is the head of the department. She is the head of the department मतलब वो जो औरत है वो डिपार्टमेंट का सिर है। वो औरत डिपार्टमेंट का सिर नहीं है, वो तो पूरा डिपार्टमेंट की बॉस है। लेकिन वो बॉस की जगह क्या वर्ड आ रहा है? हेड। तो बॉस को किससे कंपेयर करें? हेड से। शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना? शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहां पर क्या हो रहा? शी का कंपैरिजन किससे कर रहे? हेड से कर रहे, है ना? यानी बॉस से कर रहे कंपैरिजन। शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। द लेग ऑफ द टेबल। The leg of the table. टेबल का जो लकड़े का टुकड़ा है, पैर, उसके कंपैरिजन लेग से कर रहे हैं, है ना? कंपेयर वो टेबल का जो चार डंडे रहते हैं ना, एक डंडे का कंपैरिजन पैर से कर रहे हैं, लेग ऑफ द टेबल। दिस इज ऑल्सो मेटाफर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? अगर इस रूम में बहुत गर्मी हो रही तो बोलेंगे ये रूम तो भट्टी है, ये रूम तो आग की भट्टी है, तो ये रूम आग की भट्टी जैसा गर्म हो रहा है ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन बोलते ये रूम तो आग की भट्टी है। लाइफ इज एन आइसक्रीम, लाइफ इज अ जर्नी, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑल दीज आर मेटाफर्स।
I hope you understood these examples. Look at the examples, note them down in your grammar copy, and let's proceed. Now we will study the third example, third figure of speech. Alright, let us study the third figure of speech, and let this third figure of speech be antithesis. Antithesis. Okay, so anti means opposite. Antibiotics, anti-partition movement, okay, antioxidant. Anti is opposite, and thesis means ideas. Thesis means ideas or words. So what happens in this figure of speech? Two opposite words or ideas are expressed in the lines. For example, so we'll write two opposite means contrasting ideas are presented नहीं बोलते उसको, presented बोलते. Two opposite or contrasting ideas are presented. For example, in Wren and Martin they have given the example, many were called, but few were selected. See, there is a contrast here. For later, this may be for an interview. So many people were called for an interview, or maybe to woo a queen or princess. Sorry, not queen, princess. So many were called, but few were selected. बहुत से लोगों को बुलाया गया था, इंटरव्यू है समझो. Many were called, बहुत से लोगों को बुलाया गया था, कॉल किया गया था. Many were called, but few were selected. लेकिन सिलेक्शन कम लोगों का हुआ. तो कि यहाँ क्या है? Many, बहुत को बुलाया और कम को सिलेक्ट किया. ऑपोजिट बातें हो गई ये तो. So रीजन क्या लिखेंगे? We'll write antithesis, and the reason will be two opposite words. Many and few are used to show contrast. This is it. Or we can write opposite ideas are expressed. Easy language में लिखना है तो opposite ideas are expressed. In the same line हम भी लिख सकते हैं. Opposite ideas are expressed. So this is antithesis. Another example is as he fell down, his dad stood up. So this line is from a lengthy poem which was there in the previous syllabus, The Race. The name of the poem was The Race. उस poem में एक बेचारा गरीब लड़का बहुत तेज दौड़ता है and he falls down. वो नीचे गिर जाता है और उसके पापा रेस देख रहे होते हैं कहीं खड़े होके व्यूअर्स में, ऑडियंस में. तो उसके पापा जो वहां से देख रहे हैं, तो जैसे बेटा गिर जाता है तो ड्यू टू केयर के कारण आप अपना खुद का बेटा गिर गया है इसकी चिंता में उसके पापा जो बैठकर देख रहे थे रेस को वो खड़े हो जाते हैं चिंता के कारण. तो एज ही फेल डाउन, जैसे ही लड़का गिरा तो उसके पापा खड़े हो गए. तो ये ऑपोजिट बात हो गई. लड़का गिरा, पापा खड़े हो गए. तो एक्चुअली लड़का बाय चांस गिर गया और पापा इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वो सोचने लगे, ओ माय गॉड मेरे बेटे को क्या हो गया. सो यहाँ ऑपोजिट आइडियाज आ गई. फेल डाउन एंड स्टूड अप, ऑपोजिट हो गया. लड़का गिर गया, पापा उठ गए, तो ऑपोजिट हो गया.
अब मैं इसको बार बार रीजन नहीं लिखूंगा, एक्चुअली क्या हो रहा है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, अभी तक हमारा ओनली थर्ड फिगर ऑफ स्पीच चल रहा है, इसलिए मैं सबका रीजन नहीं लिखता, रीजन आप समझ लो, ठीक है। ऑपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम लाइन। अनदर एग्जांपल, स्पीच इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। This is an example from Wren and Martin. Speech is silver. Silver यानी as precious as silver. चांदी जो है, सॉरी, बोलना जो है बहुत अच्छी बात है। सिल्वर से क्यों कंपेयर किए? Because remember silver produces a very musical sound. कुछ लोगों के घर में विंड चाइम्स होते हैं, विंड चाइम्स यानी वो सिगरेट की तरह, मेटल की हॉलो सिगरेट बनी होती, सिल्वर की, चांदी की खाली सिगरेट बनी होती है और वो तो चेन से घर पे छत पे टांगी हुई होती है। जब हवा चलती तो वो सिगरेट्स आपस में टकराती है, सिल्वर की बनी हुई सिगरेट्स, और उससे बहुत मधुर संगीत, मेलोडियस प्लेजेंट म्यूजिक क्रिएट होती है, तो वो सुनकर लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो सिल्वर को बहुत डल्सिमर मेटल माना जाता है, बहुत म्यूजिक बनाने वाला। इसीलिए इंग्लिश में एक ईडियम है कि बोलते हैं लता मंगेशकर हैज अ सिल्वर टंग, लता मंगेशकर हैज अ सिल्वर टंग। मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा इडियम का क्या होता है। हम बोलते कुछ और है और मीनिंग कुछ होता है। यू हिट द नेल ऑन द हेड, वी बटर्ड अप द टीचर, ऑल हिज एफर्ट्स रिजल्टेड इनटू स्मोक, और बहुत सारे हैं। शी वाज अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड सॉकेट, वो सब मैं बाद में समझाऊंगा। तो स्पीच इज सिल्वर, बोलते बात करना, स्पीच बोलना बहुत अच्छी बात है, मधुर चांदी की तरह बजता है, बहुत अच्छी आवाज आती है, बोलना बहुत अच्छी बात है। फिर लात मारते और लात मार के बोलते लेकिन चुप रहना, उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। अब ये तो ऑपोजिट बात हो गई। पहले बोले स्पीच इज सिल्वर, बात करना बहुत अच्छी बात है, कितना मधुर आवाज आता है, आप बात करते हो तो कितना अच्छा लगता है, और फिर लात मार रहे और ऑपोजिट बोल रहे लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा अच्छा है बोलते। कभी कभी बोलते ना ये तो पुरुष ही नहीं है, बोलते महापुरुष है, बोलते ऑपोजिट बात हो गई। किसी को बोले ये तो पुरुष ही नहीं है, फिर बोले महापुरुष है, ऑपोजिट बात हो जा रही है। तो स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। पहले क्या बोलते, स्पीच अच्छी बात है, बात करना चाहिए, बोलते बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बोलते लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो ये तो दो ऑपोजिट बातें होगी, पहले बोलते बात करो, फिर बोलते चुप रहो, तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। दैट इज व्हाई वी विल राइट ऑपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में ऑपोजिट आइडियाज आ गए। For some the journey is long, for some the journey is short. For some the journey is long, for some the journey is short. कुछ लोगों के लिए जीवन की यात्रा लंबी होती है, मरते ही नहीं, घर वाले दुआएं करते हैं, दुआ करवाते इधर उधर, मरो मरो मरने होना, मरते ही नहीं है, खटिया बिजी रहती है। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी बड़ी छोटी होती है, बेचारे बचपन में ही मर जाते हैं। तो फॉर सम द जर्नी इज लॉन्ग, फॉर सम द जर्नी इज शॉर्ट। यहाँ जर्नी का मतलब क्या है, जर्नी ऑफ लाइफ। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत लंबी होती है, कुछ लोगों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। यहाँ पे भी देखो ऑपोजिट वर्ड आ गया, लॉन्ग आ गया और शॉर्ट आ गया, ऑपोजिट हो गया। तो ऑपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड, तो ये एंटीथेसिस हो गया। एंटी यानी ऑपोजिट, थेसिस यानी आइडियाज। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी मीडियम वाले लोग बोलते भाषा अलंकार। भाषा अलंकार यानी लैंग्वेज का गहना, अपनी लैंग्वेज को सजाना है, अपनी भाषा को सजाना है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करो, भाषा का अलंकार, उसको गहना पहनाओ, तो आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, मराठी में भी होते हैं ये, मराठी में इनको भाषा अलंकार बोलते हैं, हिंदी में भी शायद यूज करते हैं, कवि लोग यूज करते हैं, पोएट्स यूज देम। सो फॉर सम द जर्नी इज लॉन्ग, फॉर सम द जर्नी इज शॉर्ट। So I have given 3 examples. ऐसे तो ढेर सारे एग्जांपल्स है, बट आई होप कि आप 3 एग्जांपल्स में समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग काफी समझदार लोग हैं। Let us now see the fourth figure of speech, and that is related to this one. The fourth figure of speech that we will study is oxymoron. The fourth figure of speech is oxymoron. The fourth figure of speech is oxymoron. What is the meaning of the word oxy? क्या आपको मालूम है ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट।
ऑक्सी का मतलब ऑपोजिट होता है। ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन गैस हर चीज को जलाती है। दुनिया में अगर कहीं भी कुछ भी जल रहा है, माचिस जल रही है, लकड़ी जल रही है, लोग जल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो लोग का दिल जलना एक अलग बात है। तो कोई चीज जल रही है तो हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन है तभी वो जल रही है। आपने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि इफ यू टेक अ बर्निंग कैंडल, अगर एक मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर कांच का जार रख दो, कांच की बर्नी रख दो और एयर अंदर मत जाने दो, थोड़ी देर के बाद मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन हर चीज को जलाने का काम करती है, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलती। तो जो दूसरे को जलाती है लेकिन खुद नहीं जलती तो ऑपोजिट काम हो गया। इसीलिए ऑक्सी का मतलब होता है ऑपोजिट। तो ऑक्सीमोरॉन इज रिलेटेड टू एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, फिगर ऑफ स्पीच और ऑक्सीमोरॉन एक जैसे है, लेकिन थोड़ा इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है? in antithesis opposite words are used, but they are a little far away from each other. But in oxymoron, two opposite words are placed side by side. अच्छा, आप ये मत बोलना कि सर ये फिगर ऑफ स्पीच तो हमने कभी सुने ही नहीं। 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में, हायर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पर ये फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया है। तो हम 9th स्टैंडर्ड में हैं तो हमको 10th में ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस अब थोड़ी चेंज हो रहा है। अगर हम 10th में हैं तो हमको अभी पढ़ना है, ये तो हमने बल्कि हो गया होगा स्कूल में। तो ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? टू ऑपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं एंटीथेसिस की तरफ, लेकिन यहां पर क्या होता है? आजू बाजू में रखते हैं दो ऑपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है जेम्स द फर्स्ट। ये इंग्लैंड का एक महाराजा था। इंग्लैंड के लोगों का अपना नाम अमर रखना बहुत अच्छा लगता है। जॉन का बेटा जॉनसन, जॉनसन का बेटा जॉनसन एंड जॉनसन, रॉबर्ट का बेटा रॉबर्टसन, पीटर का बेटा पीटरसन, स्टीवन का बेटा स्टीवनसन, विलियम का बेटा विलियमसन। वो अपना नाम अमर रखने में बहुत खुश होते थे। तो जेम्स द फर्स्ट, इसके बेटे का नाम रहेगा जेम्स द सेकंड। तीसरे बेटे का नाम, तीसरी जनरेशन का नाम रहेगा जेम्स द थर्ड। उसका भी और बेटा पैदा होगा 4th जनरेशन में, तो जेम्स द फोर्थ। वो अपना नाम अमर रखते। तो जेम्स द फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल ऑफ इंग्लैंड। देखो, जेम्स द फर्स्ट क्या था? इंग्लैंड का किंग था। जेम्स द फर्स्ट इंग्लैंड का किंग था। मैं भूल गया, एक्चुअली मुझे बहुत साल हो गए ये सब हिस्ट्री पढ़े हुए इंग्लिश की, तो मुझे याद नहीं कि कितने साल से कितने साल तक ये किंग था। अब मैं भूल गया, बहुत साल हो गए मुझे, 10-15 साल हो गए पढ़कर ये सब। तो जेम्स द फर्स्ट वाज द वाइसेस्ट फूल ऑफ इंग्लैंड। जेम्स द फर्स्ट इंग्लैंड का सबसे अक्लमंद बेवकूफ था। देखो, ऑपोजिट बात आ रही है। इंग्लैंड का सबसे अक्लमंद बेवकूफ था। तो अक्लमंद भी बोल रहे, वाइजेस्ट भी बोल रहे और बेवकूफ भी बोल रहे। दो ऑपोजिट वर्ड है। वाइज यानी क्या होता है? अक्लमंद। फूल यानी क्या होता है? बेवकूफ। एक ही आदमी को दो क्वालिटीज दे दे रहे, वो भी आजू बाजू में रख के। अब आप बोले सर ऐसा हो कैसे सकता कि एक ही आदमी अक्लमंद भी है और फूलिश भी है? तो इंग्लिश में एक कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? देयर इज अ पर्सन लिविंग इन अ विलेज। एक लड़का है, समझो एक आदमी है, वो गांव में रहता है। गांव से निकलकर शहर जाता है घूमने के लिए। So what happens in the city? He sees a multi-story building. वो एक बहुत लंबी ऊंची बिल्डिंग देखता है और उसको लगता है इतनी ऊंची बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के मंजिलें गिनना चालू कर देता है। He starts counting the stories of the building. कितने मंजिल बिल्डिंग है वो गिनता है। 1 2 3 4 5 20 मंजिले बिल्डिंग रहती, 20 मंजिले। तो वो 20 मंजिले बिल्डिंग गिन लेता है और बोलता है इतने सारे मंजिले, इतने सारे फ्लोर्स बिल्डिंग के। वहां पर एक दूसरा आदमी आता, बोलता क्या कर रहे हो? वो बोलता कुछ नहीं, मैं बिल्डिंग के मंजिले गिन रहा हूँ कितने। तो वो दूसरा आदमी उसको बोलता है तुम्हें मालूम नहीं, शहर में बिल्डिंग के मंजिले गिनना कानूनन जुर्म है, तुमको इसके लिए पेनल्टी देना पड़ेगा, तुमको फाइन भरना पड़ेगा। तो वो बोलता कितना फाइन हुआ? तो बोलता तुमने कितने मंजिले गिने? तो आदमी बोलता मैंने 5 मंजिले गिने, सिर्फ 5 फ्लोर गिने। तो बोलता चलो ठीक है, 5 फ्लोर गिनने को 50 रुपए पेनल्टी दो। तो वो 50 रुपए उसको पेनल्टी दे देता और आ जाता आगे और बोलता अरे वाह अच्छा हुआ, मैंने तो 20 मंजिले गिना था, मैंने तो उसको सिर्फ 5 ही बताया, बच गए मेरे पैसे। तो ये क्या हुआ? वो अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बेवकूफ बन गया।
है ना। बिल्डिंग गिरने पर, मजले गिरने पर कोई फाइन पेनल्टी नहीं होती। वो अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है लेकिन है वो बेवकूफ। तो इस तरह दो ऑपोजिट वर्ड्स आजू बाजू में आ जाए तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। फिर और एक एग्जांपल, शी हैज टेरिबल ब्यूटी। शी हैज टेरिबल ब्यूटी। अब ये भी देखो, टेरिबल भी बोल रहे हैं और ब्यूटी भी बोल रहे हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं यार वो लड़की क्या कातिल खूबसूरत दिख रही है ना, कातिल भी बोल रहे हैं, खूबसूरत भी बोल रहे हैं। शी हैज टेरिबल ब्यूटी। टेरिबल यानी भयानक, तो क्या भयानक सुंदरता है वो लड़की में, तो भयानक भी बोल रहे हैं और सुंदर भी बोल रहे हैं। ऑपोजिट बातें हो गई एक साथ। शी हैज हॉरिबल ब्यूटी, डरावनी सुंदरता। तो टेरिबल भी बोल रहे, ब्यूटी भी बोल रहे, ऑपोजिट बातें हैं, है ना। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट था, उसने लिखा है एक पोएम में, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। एकिंग जॉइस, एक यानी पेन होता है ना, टूथ एक, स्टमक एक और पेन में हालांकि दर्द डिफरेंस होता है। अच्छा, हेडेक में अ लगाना जरूरी है, अ हेडेक, ठीक है। आई हैव अ हेडेक, ऐसा नहीं बोला आई हैव हेडेक, आई हैव अ हेडेक। हालांकि एक सिर दर्द है ऐसा नहीं होता उसका मतलब, बट ए लगाना होता है। सो एंड ऑल इट्स एकिंग जॉइस आर नाउ नो मोर। एकिंग, दर्द देने वाली खुशी। क्या दर्द देने वाली भी कोई खुशी होती है? हाँ, है ना। कभी कभी दर्द में भी खुशी मिलती है। कोई लोगों को अगर यहाँ चोट लग गई ना, चोट के आजू बाजू में हाथ लगाओ तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द होता थोड़ा अच्छा लगता है। कभी आपने बचपन में देखा होगा कि कहीं चोट लग गई, उसके आजू बाजू में थोड़ा सहलाने से, थोड़ा हाथ ऐसा सहलाने से अच्छा लगता है। तो दर्द में भी खुशी होती है कभी कभी। कुछ कुछ लोग तो सैडिस्ट होते हैं, चलो जाने दो। शी हैज टेरिबल ब्यूटी, बोले टेरिबल और ब्यूटी ऑपोजिट बातें आ रही है ना। एक साथ दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज कर लिए जाए आजू बाजू में, एकदम आजू बाजू में, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सी इज ऑपोजिट, मोरॉन वर्ड, मोरॉन यानी वर्ड्स। सो ऑपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। अब ये हो गया। इसके बाद मुझे और फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाना है एक्चुअली, बट टाइम डजंट अलाउ मी टू टीच फर्दर। तो लेकिन आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लेक्चर्स, डोंट वरी। मैं कोशिश करता हूं कि इसके बाद और लेक्चर्स बना के आपको सेंड करने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ना है, नोटबुक में बना के रखना है, एंड रिमेंबर दीज वीडियोस। इसको फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें शॉर्टकट में आपको एग्जांपल जल्दी मिल जाएंगे, तो आप समझने में और रिवीजन जल्दी हो जाएगी। हैव अ नाइस डे।